Is it all right? This is better. Can you all hear me? Write and say. Yeah. Is the audio fine? Are you able to see? Okay. So I'm beginning with integers. All right. So let's get started. Now, first I'm going to revise from class 7th NCRT book. All right. So the first question will be based on the properties of integers. All right. So what are the 4 properties that you know of? It is the closure property, commutative property, the next one, associative property, okay, and distributive property. All right. So what do you mean by closure property, okay, under addition? Any idea? Hello? Yes, exactly. Closure property means, okay, under addition. Under addition. See, if I say, so this is closure property. First one, correct? Which means if you add 15 plus, say 7, this is an integer. Well, this is also an integer. So what do you get? Another integer. So 15 plus 7 is equal to how much? Okay, so this is under addition. So 15 plus 7 is 22. Am I right? This is also an integer. Understood or not? Okay. Now I'm giving you a question of closure property under subtraction. Can you quickly frame a question of closure property under subtraction? Quickly, so that there is clarity. Yes, do it fast. So closure property, yes. So minus 5 is supposed to be also an integer. Right or wrong? Got it? Understood? So closure property under subtraction. Okay, so Rupali, you have done really well. Okay, so to others, I would say that what are they trying to say is if one integer is here, another integer, integer 1 minus integer 2 will give an integer 3. For example, like Rupali has written, okay, what has she written? Okay, so let me give you another example. Say 20 minus, say if I say minus 23, what shall we get? This is an integer, this is also an integer, we are subtracting. Shall we get an integer? Of course we'll get. Let us solve this. Minus minus plus 23. So we will get, okay, how much? 43.
Understood? A positive 43. So this is also an integer. So the third property we go to is commutative property. Commutative. Have you commuted on any, okay, public transport? It could be a metro. It could be, okay, it could be a bus. It could be anything. So commutative property means what? Okay, answer me. What is commutative property? Got it? So commutative property of integers is that if you have, say, a, okay, plus b equals to b plus a. A has traveled from the first position to second position. All right? Understood or not? So let us take an example. If I say 5 plus 13, won't it be equal to 13 plus 5? Tell me. Because they both are equal to what? 18 equals to 18. All right? Understood? Can you give me an example of associative property? Okay, so Dhruv, answer me this question. Give me one example of associative property of integers. All right. Now try and frame one question that will show associative property of integers. Batao. बोलो तो associative property of integers के एग्जाम्पल बताओ आप लोग. बता सकते हो? चलो मुझे बताने दो. ठीक है, तो यहां हमारा ये देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, बताओ. जैसे हमारा a प्लस बी प्लस सी है, तो a का एसोसिएशन यहाँ b के साथ हो रहा है. दूसरे वाले केस में a का एसोसिएशन c के साथ होगा. ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं. ऑलराइट, समझ में आया? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग इसके. कोशिश करो. ये रिवीजन है, गलत हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं. गलत हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है. एम आई राइट? यस. तो ध्रुव, ठीक है, ये आपके मम्मा का फोन है. ठीक है, तो आपको मिल रहा है ये इसके पूरे मार्क्स. ठीक है, तो 2. अब आपने क्या किया, हमें ये था कि हमें प्लस में मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करना है. ठीक है, तो अभी मैं समझाती हूँ आप लोगों को. तो जैसे यहाँ पे 2 लिखो, ध्रुव खास करके आप सुनो, और यहाँ 5 लिखो. तो क्रिश आप सुन रहे हो? तो 2 को यही रखना है और 5 करना है. तो आप करेक्ट कर लो ध्रुव, करेक्ट कर लो, और बी को बाहर ले जाएंगे. यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 प्लस 5 यहाँ 10 होता है, और यहाँ भी 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10. ऑलराइट,
सो ऐसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। क्लियर? ये सारे, ठीक है, ये सारे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अहम है इंटीजर्स के। ऑलराइट, तो अभी क्रिश आपने किया क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब कौन सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है? सोचो 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 और लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारा कौन सा प्रॉपर्टी आता है? चलो एडिटिव आइडेंटिटी सिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ऑलराइट, अब एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? यस क्रिश, करेक्ट कर लो स्पेलिंग। ADD, ठीक है, ADD, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जिसको हम अगर ऐड करते हैं किसी नंबर से किसी इंटीजर में, ठीक है, तो जैसे उसका आंसर, जैसे 3 में क्या हम ऐड कर देंगे कि हमारा आंसर 3 ही आए। क्लियर ना? तो एज ए रिजल्ट हमको निकालना है कि 3 में हम सिर्फ 0 ही ऐड कर सकते हैं कि 3 का वैल्यू नहीं बदलता है। सही कि गलत? क्लियर? तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 3 का अगर आंसर आना भी है 3, तो उसमें हम 0 ही ऐड कर सकते हैं, वरना ये 3 का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब हम रिवीजन करते हैं कुछ सवालों के जो हम लोग, ठीक है, यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देख लो यहाँ पर पहला सवाल जो हम आपको देंगे, ठीक है, वो है, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया असली रिविजन। ऑलराइट, तो आपको ये निकालना है कि इन अ क्विज, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। कैन यू सी इट? आ रहा है समझ में आपको? तो इन अ क्विज, ठीक है, टीम ए, ये सवाल करो, टीम ए हैज स्कोर्ड -40, 10 और 0, एंड टीम बी हैज स्कोर्ड कितना बताओ तो? आपके एनसीईआरटी बुक में ये है 10, फिर उसने 0 लेके आया, फिर -40, ठीक है। तो 3 मैचेस हुए और 3 क्विजेस हुए जिसमें इनको ये मिला। अब आपको बताना है
कि which team scored more. Scored more, बताओ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बाद में लेते हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 में नहीं है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्ली लिख के हमें आप लोग स्क्रीन पे लिखो और समझ में आए फिर कैसे होता है, ठीक है. तो अब ये -40 है और 10 है, तो कुल मिला के इसके कितना होना चाहिए? -40 प्लस 10 प्लस 0, तो कितना होना चाहिए? माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का लेते हैं और -30, ठीक है ना. माइनस प्लस माइनस और ये, ठीक है. दूसरा वाले का ये टीम ए का है और टीम बी का क्या है? 10 प्लस 0 प्लस -40. तो इसको सॉल्व करेंगे. 10, 0 को छोड़ देते हैं, प्लस माइनस माइनस 40, तो ये आ गया -30. तो दोनों के -30 हुए, ठीक है ना. अब दिखाओ ध्रुव, दिखाओ अपना आंसर दिखाओ. नेक्स्ट, या तो -30 हो गया, वो भी -30 हो गया, एकदम सही. बोथ टीम्स हैव हैड अ टाई, उनको टाई हो गया. सो अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, ठीक है. ये हमने इंटीजर्स के सवाल लिए क्योंकि रिवीजन करना है, तो थोड़े थोड़े. अब एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने करा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बताओ? बोलो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये भी रिवीजन कर रहे हैं, बोलो. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? Can you write and tell me? Multiplicative identity होता है, कैन यू डिफाइन इट? डिफाइन कर सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? बोलो. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे कि हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी में करे थे कि इधर का और इधर का सेम होना चाहिए, बस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. जैसे सपोजिंग -3 है, यहाँ भी -3, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये, ठीक है, सेम रहे दोनों, तो ऑब्वियसली 1 से. इसीलिए ध्रुव आप बोल रहे हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज दैट नंबर, ओके, व्हेन मल्टीप्लाइड विथ एनी इंटीजर विल गिव द सेम नंबर. ठीक, क्लियर ना? एकदम क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रिवीजन पर, ठीक है. क्योंकि क्रिश ने पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत जरूरी है. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चों को लग सकता है. कैसे बताते हैं, ठीक है. अब हमें ये सवाल दिया है एनसीईआरटी में, तो यहां लिख लूं पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एम आई राइट, ऑफ इंटीजर्स. तो कैसे करेंगे हम? एक सवाल लेते हैं, ऑलराइट. तो ये कह रहा है कि जैसे a है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. ध्रुव आप समझ लो, ये पहले वाले में आपने ये करके रखा था, ठीक है. तो b प्लस c है,
इक्वल टू, तो अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी, a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय b, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये प्लस यहां आ जाएगा और a मल्टीप्लाइड बाय c, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, ओके। तो ऐसा ही होता है। तो एक प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हम 10 लिखते हैं यहां पर, मल्टीप्लाइड बाय से 6 प्लस 2 लिखते हैं। तो इसके मतलब क्या है, हम कर सकते हैं ना 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कर लिए और फिर से ये 10 को हम इसके साथ बाइंड अप करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ आ गया 60 और ये आ गया 20, यानी हमारा आंसर आ गया 80, 80। समझ में आया कि नहीं, ये रिवीजन समझ में आया? ठीक है। अब हम जो देख पा रहे हैं, ठीक है, एक नया सवाल लेते हैं इसमें। तो आपको ये काम करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं। तो आप ये कैसे करोगे, चलो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ। वो सवाल ये है कि आपको प्रूव करना है, चलो, कि इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है 2, और इन्होंने क्या किया है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। आर दीज इक्वल, ये क्या इक्वल है, ये क्या इक्वल है बताओ। 6 और -10 मल्टीप्लाइड बाय -2, जगह नहीं है इधर इसलिए, ठीक है। वापस से मैं लिख देती हूँ, 10 इंटू 6 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो ये वाला और ये वाला क्या सेम है। ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, ऑलराइट। सवाल देखो क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 और ब्रैकेट में है -2 और ये है ऐसे, सोचो, इक्वल टू 10 इंटू 6 -10 इंटू -2। फटाफट करो और बताओ। कैसे इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले तो अंदर का कर लेते हैं, 10 करें मल्टीप्लाइड बाय अंदर का 6 लिखे, माइनस 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 प्लस करें 2, ठीक है। अब देख पा रहे हो इसको, और इधर का देखो 10 इंटू 6 60 हो गया, माइनस बीच में रखते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बॉड मास के हिसाब से क्या होता है, -10 मल्टीप्लाइड बाय ये, तो हमारा आ गया यहाँ +20, तो ये आ गया हमारा 10 इंटू 8 80,
और ये भी हो गया 80, तो हुआ ना इक्वल, हुआ कि नहीं, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सो ध्रुव आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 10 इंटू 2 20। क्लियर कि नहीं, बताओ। चलो अब दूसरा सवाल देते हैं दूसरे चैप्टर से, ठीक है? तैयार हो? चलो, तो दूसरा जो सवाल हम देने वाले हैं वो दूसरे चैप्टर से, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है ना? तो इसमें आपको क्या करना है कि एक सवाल मैं देती हूं जो कि इनके बुक में दिया हुआ है कि हाफ ऑफ जैसे बोल रहे हैं, तो अब इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर है? ये है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये चैप्टर 2 है। ऑलराइट, ठीक है? अब देखो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के ये सवाल आपको करना है, थोड़ा बड़ा है और ये आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, इसमें क्या है कि नंबर 1 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/4। करो फटाफट, ये करो। कर रहे हो आप लोग? बहुत छोटा सवाल है ये, झट करो। और इसी सवाल में हम आपको डिवीजन भी सिखा देंगे। अगर डिवाइड करना है 2/5 डिवाइडेड बाय 5 1/4 क्या होगा? ये दो सवाल आपके सामने है। ठीक है, आंसर आया? जल्दी बताओ आंसर क्या है। ओके, आंसर आया, बताओ क्या आंसर आया। ओके, डिवीजन वाला भी हो गया। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 आर कितना होता है? 20 21 अपॉन 4, है ना? ये कटा 1 टाइम, ये कटा 2 टाइम्स, यानी इसका आंसर आ गया 21/10। और 2/5 डिवाइड करें अगर हम
21/4 से, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है 2/5, और ये फ्लिप करता है, मल्टीप्लाई जब बदल जाता है तो डिवीजन की जगह पर, तो हमारा आ गया 4 ऊपर और 21 नीचे, कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये आ गया 105 नीचे। ठीक है ना, करो अब, क्लियर? ठीक है, तो 105 आपने ऊपर क्यों लिखा? ये 21 नीचे जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 8, और 5 × 21 क्या होगा 105। सो कृष अभी सही है, बिल्कुल सही है। अब फटाफट ये करके दिखाओ मुझे, थर्ड वाला क्वेश्चन ये देखो, ये करके दिखाओ। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5 करके दिखाओ। आंसर आया? आ गया आंसर? करो आप लोग, पेपर पेंसिल पे करो, और फिर उसके बाद हमें आंसर बताओ। कोशिश करो थोड़ा स्पीड को मेंटेन करने का। इसके बाद डेसिमल्स में जाएंगे, ठीक है? व्हाट इज द आंसर? क्या है आंसर बताओ। आंसर मिल गया? ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 2 कितना 10, 11/5 डिवाइड बाय 5 × 5 प्लस 1 6/5, फिर ये जाता है 11/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, 5 5 कट जाता है तो 11/6। ऑलराइट, अब एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल देती हूँ। ऑलराइट, वो सवाल ये है कि आपको ये बताना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेसिमल का सवाल है। ओके, सो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर कर लो। सो ये डेसिमल का है, ठीक है? तो आपको दिया गया है 0.893, फिर दिया है 0.891, फिर दिया है 0.819, 0.899। Can you arrange this in ascending order? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फटाफट, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है।
जल्दी करो। तो 0.893, 0.891, 0.819, 0.899। बोलो, यू हैव द आंसर ध्रुव। चलो, तो सबसे पहले आप लोग आंसर अपलोड करो। कौन सा वाला आपको करना है? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े को पहले रखो, ठीक है। तो ध्रुव, मैं देख पा रही हूं कि 0.19, 0.819, फिर 0.891, और ये क्या कर रहे हो आप? आपको करना है डिसेंडिंग, सबसे बड़ा कौन सा लेना है? तो ये बड़ा नहीं लग रहा आपको? 0.899, उसके बाद ये आएगा, एम आई राइट? फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, सही? तो डिसेंडिंग में हमेशा क्या होता है कि बड़ा वाला पहले लेते हैं। ऑलराइट, बड़ा वाला पहले लेते हैं। डिसेंड कर रहा होता है बच्चे, जैसे हम लोग सीढ़ियों से उतरते हैं तो क्या करते हैं? उतरते ना, वी गो डाउन। तो आपको ऐसे जाना है, ठीक है? तो सबसे बड़ा पहले लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट में, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखो, डेसिमल्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। वो है दिस वन। ठीक है, आप ये बताओ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाइड बाय से 4.35, इसका आंसर क्या होगा? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से करो। बताओ कितना होगा इसके आंसर? आपने मल्टीप्लाई किया? कैसे करें बताओ। अच्छा, तो चलो करते हैं। कैसे करेंगे? बड़े नंबर को ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.3। ओके, तो ये हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग को पता भी हो, जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको भी पता हो। सो 3 5 जा कितना होता है? 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 10 हो गया, कैरी 1, 3 4 जा 12, 13 हो गया। फिर 2 5 जा, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 2 5 जा कितना होता है? 10 ना। 1 कैरी ओवर हो गया, 2 3 जा 6 7 हो गया कैरी करने के बाद, 2 4 जा 8। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, कैरी 1, 8 9 10 हो गया। अब हमारे पास एक ये और ये डेसिमल के इधर है, तो 1 2 3 के बाद यहाँ डॉट लगाएंगे।
क्लियर ना? सो आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सम दूं आपको करने को। मल्टीप्लिकेशन तो आ गया, नहीं एक डिवीजन देती हूँ मैं। चलो एक प्रॉब्लम ही दे देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम में ये है कि अ टू व्हीलर, ठीक है, टू व्हीलर क्या होता है बताओ? वो साइकिल भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, कुछ भी। कवर्स, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ 55.3 kilometers in 1 liter पेट्रोल। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? अब हमको निकालना है कि हाउ many kilometers will it go or how much distance will it go or will it cover in 10 liters। बताओ, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम सम भी आ जाएगा आपको। $553 आया। ओके, सो कैसे करें आपने? तो 55.3 किलोमीटर, 1 लीटर में ये जा रहा है 55.3 किलोमीटर्स। तो 10 लीटर में कितना जाएगा वो? 55.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी क्या होगा? आप ये देखो, इसका शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट में आपको ये करना है कि अगर एक जीरो दिया हुआ है तो आपको एक जंप करवाना है, यानी हमारा 553 किलोमीटर्स आ गया। बहुत जल्दी आप लोगों ने करा, रियली वेरी गुड। ओके, थम्स अप टू बोथ हु हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला मीन मीडियन मोड में, ठीक है ना? हाँ, मीन मीडियन मोड में चलते हैं। अब हमको ये दिया गया है, ठीक है, कि मोड ऑफ, ये थर्ड चैप्टर है ये, तो ये है राइट। तो यहाँ पर आप समझ लो कि मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है, ये है एक्सरसाइज डेटा हैंडलिंग। ऑलराइट, डेटा हैंडलिंग, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या क्या नंबर्स है बताओ? 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 6 है और 2 है। इसका मोड फटाफट बताओ, मोड, मोड क्या होगा? बताओ मोड क्या होगा? हाँ, तो जैसे कि हम देख पा रहे, मोड वो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आए कुछ, ओके, उन नंबरों
नंबर्स में जो कि दिया गया है। अब 3 देखो, 2 3 बार आया है, 3 टाइम्स, और 3 कितने बार आया है? एक बार, 1 टाइम। 4 कितने बार आया है? 1 टाइम। 5 कितने बार आया है? 1 टाइम। 6 आया है 2 टाइम्स, एंड 8 आया है 1 टाइम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आता है उसको हम मोड बोलते हैं। देयरफॉर मोड इज 2। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देते हैं मिसलेनियस, ठीक है? तो मीन निकालना है आपको, एम आई राइट? तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है? तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सपोजिंग आपको मार्क्स मिला, ये क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द मीन, find the mean of the marks that Rahul got in his exams. राहुल को कितना मिला? चलो देखते हैं। 90 मिला एक में, 85 मिला, फिर एक और में 85 मिला, फिर 76 मिला, फिर 39 मिला, फिर 48 मिला, फिर 56 मिला, 95 भी मिला, होशियार बच्चा, 81 मिला, और 75 मिला। यानी एक सब्जेक्ट में उसको 90 मिला, फिर दूसरे सब्जेक्ट में 85 मिला, तीसरे में भी 85, फिर 76, फिर 39, फिर 48 मिल गया, ठीक है? फिर 56, फिर 95, फिर 81 और फिर 75। बोलो तो इनका कैसे एवरेज निकलेगा? एवरेज यानी मीन होता है, ठीक है? टेक योर टाइम, करो। तो ध्यान से करो। ध्यान से करो। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऐड करना पड़ेगा 90 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 76 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस 75। ये सबको ऐड करना होगा आपको, ठीक है? ऐड करके जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 सब्जेक्ट को है तो ये डिवाइड बाय 10 होगा। बोलो आंसर क्या है? ऐड करने के बाद हो रहा है आपका? फटाफट करो, फिर हम वाइंड अप करेंगे। ओके, एडिशन ये आया, ठीक है? तो एडिशन आपका 730 आया, और एवरेज क्या आया? बोलो, एवरेज आया? ओके, चलो तो ऐड करती हूँ मैं, ठीक है? ऐड करती हूँ, मैं बताती हूँ कि क्या आया। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ऑलराइट, 90
plus 85 plus 85 plus 76 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75. All right. तो टोटल्स ध्रुव आप सही कह रहे हो, ये 730 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया हमारा मीन इक्वल्स टू 73। क्लियर ना, समझ में आया? चलो इसी पे छोड़ते हैं, आज 1 घंटा हो गया ये क्लास। अब कल अगर आप लोग ओके इंटरेस्टेड हो तो कल भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है वो मैं अगर मुझे शेड्यूल करना हो तो आप लोग को मैसेज आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल राइट, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।